A Lecture upon the Shadow. By Donne. Stand still, and I will read to thee. A lecture, love, in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. But, now the sun is just above our head. We do those shadows tread. And to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did, and shadows, flow from us, and our cares, but now 'tis not so. That love has not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. A Lecture upon the Shadow. By Donne. Stand still, and I will read to thee. A lecture, love, in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. But, now the sun is just above our head. We do those shadows tread. And to brave clearness all things are reduced. So whilst our infant loves did grow, disguises did, and shadows, flow from us, and our cares, but now 'tis not so. That love has not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. Stanza 2. Except our loves at this noon stay, we shall new shadows make the other way. As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves, and blind our eyes. If our loves faint, and westwardly decline, to me thou, falsely, thine, and I to thee mine actions shall disguise. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. But oh, love stays short, if love decay. Love is a growing, or full constant light, and his first minute, afternoon, is night. Stanza 2. Except our loves at this noon stay, we shall new shadows make the other way. As the first were made to blind others, these which come behind will work upon ourselves, and blind our eyes. If our loves faint, and westwardly decline, to me thou, falsely, thine, and I to thee mine actions shall disguise. The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. But oh, love stays short, if love decay. Love is a growing, or full constant light, and his first minute, afternoon, is night. जॉन डोन अपने समय के आध्यात्मिक कवियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने भाषा और चौंकाने वाली इमेजरी के कंपन द्वारा आध्यात्मिक मोड सेट किया, और प्रत्यक्ष शब्दों पर मॉडलिंग की गई एक उपन्यास के लिए प्राथमिकता उन्हें रोमन कैथोलिक के रूप में लाया गया था। बाद में वह इंग्लिकवाद में परिवर्तित हो गया था, और सेंट पॉल चर्च के डीन उनकी मृत्यु तक थे। एक आध्यात्मिक कविता का कुल प्रभाव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप से पाठक को देखने और जानने के लिए कि उसने वास्तव में क्या नहीं देखा है या पहले के बारे में सोचा है। सभी डोन की कविता की तरह यह कविता भी बुद्धि और भावना के खिलाफ बुद्धि पर जोर देती है। कुल मिलाकर अपने ए व्याख्यान पर द शैडो में जॉन डो ने रूपक रूप से एक प्रेम संबंध के साथ सूरज की बढ़ती और स्थापना के समान दिखाई देता है। यह रूपक सुझाव देता है कि प्यार बढ़ता है, एक चोटी तक पहुंचता है, और फिर जल्दी से गिरावट आती है, जैसा कि सूर्य अपने दैनिक पाठ्यक्रम में होता है। रूपक लागू होता है यदि कविता कथाकार के लिए प्यार के बारे में उनकी निराशावादी दृष्टिकोण के बारे में अपने प्रेमी को सूचित करने के लिए एक सूक्ष्म तरीका होने के लिए होती थी। हालांकि एक अलग व्याख्या कवि की उम्मीद टोन में से एक हो सकता है, को छोड़कर और अगरतला शब्दों के अपने बार बार उपयोग के माध्यम से व्यक्त किया। सुझाव है कि डोने विश्वास नहीं करता है कि प्यार अनिवार्य रूप से मर जाएगा। वह वास्तव में और महान पाखंड के साथ विश्वास करता है कि प्यार के उच्च बिंदु बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार दोपहर की अवधि के रूपक के साथ सीधे परस्पर विरोधी लंबे समय तक होने में सक्षम नहीं है। पहले छमाही में छाया जो उनका पालन करते हैं वे प्रेमियों को नए सेयर्स से बचाते हैं जो उनकी खुशी की स्थिरता पर संदेह करते हैं। उनके बाद छाया रहस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे दूसरों से रख रहे हैं,
खुद को बाहरी अस्वीकृति से बचाने के लिए। डोन सुबह में कविता शुरू होता है, दो प्रेमियों, जल्दी दिन के प्रकाश में चलने आनंदित और लापरवाह, और वह दोपहर में पहली छंद समाप्त होता है जब सूरज प्रेमियों के ऊपर सीधे है, कोई छाया कास्टिंग। दोपहर की कल्पना इस अर्थ में उनके आनंदमय रिश्ते के प्रतीक का प्रतिनिधित्व कर सकती है, कोई रहस्य नहीं रखा जा रहा है या छाया डाली जा रही है। तो जब तक हमारे शिशु प्यार करता है, भेष किया था, और छाया, प्रवाह, हम और हमारी परवाह से। दूसरे छमाही में। डोन ध्यान दें कि प्रेमियों चलना जारी रखने के रूप में, उनकी छाया पश्चिम में गिरावट या उनके सामने डाली जाती हैं, रहस्यों का प्रतिनिधित्व एक दूसरे से रखा जा रहा है और उनके रिश्ते को काला धोखे से रखा जा रहा है। रेखा 19, जिससे छाया एक बार इस्तेमाल किया गया था दूसरों को अंधा करने के लिए, जो पीछे से आते हैं और दूसरों की अस्वीकृति से प्रेमियों के लिए सुरक्षा के साधन के रूप में, छाया अब छिपाने और उन्हें एक दूसरे को देखने से अंधा। रेखा 16-17। रूपक के अनुसार प्यार का यह उच्चतम रूप अल्पकालिक रहता है क्योंकि दोपहर के बाद पहला मिनट रात है। हालांकि दिन की अजय चक्रीय प्रकृति के बावजूद कवि अपने प्रेमी को पल का विस्तार करने और अपने प्यार को आखिरी बनाने के लिए एक याचिका बनाता है जब वह कहता है, इस दोपहर में हमारे प्यार को छोड़कर हम नई छाया दूसरी तरफ बनाएंगे। वह अपने प्यार के सच्चे आशावादी दर्शन का खुलासा कर रहा है जो रूपक के विपरीत है। इस कविता का प्रारूप एक पुजारी के रूप में डोन के अनुभव से जोड़ा जा सकता है। भाषा और कविता की कल्पना बहुत अपने धार्मिक गैदरर्स के लिए की पेशकश की है कि एक धर्मोपदेश की तरह दर्शकों के लिए की पेशकश की। डन हालांकि सीधे इस प्रेमी को संबोधित, परोक्ष रूप से मानव जाति को संबोधित करने के लिए देखा जा सकता है, हमें एक पूरी मंडली के रूप में बुला अपने प्रेमी के साथ ध्यान करने के लिए अभी भी खड़े। लाइन 1 और एक व्याख्यान, प्यार की एक विशेष व्याख्या के रूप में प्रस्तुत, प्यार के दर्शन।